إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اس کی ہم پر اس قدر نعمتیں ہیں کہ اگر انہیں کوئی گننا بھی چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ کی اس قدر نعمتیں ہیں کہ انہیں اگر کوئی گننا بھی چاہے تو نہیں گن سکتا۔ اور جب اللہ رب العزت کو نعمت عطا کرتا ہے تو اگر بندہ اس کا شکر ادا کرے تو اللہ نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے، نعمتیں اور زیادہ کر دیتا ہے۔ اور اس بات کا ذکر بھی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اگر تم اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم وہ نعمتیں اور زیادہ کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے ان عذابی لشدید، تو پھر یہ ذہن میں رکھو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا ہمارا واجب ہے۔ اور اس کی کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے؟ اگر یہ کہا جائے کہ اگر ہم صرف اتنا دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہوا فری میں مہیا کر رکھی ہے، آکسیجن فری میں، 24 گھنٹے ہم آکسیجن استعمال کرتے ہیں۔ اس آکسیجن کی قیمت کا پتہ لینا ہو تو جو ہسپتالوں میں آکسیجن لگاتے ہیں، آپ معلوم کر کے دیکھیں کہ اگر کوئی اسپیشل نگہداشت کا جو وارڈ ہوتا ہے اس میں کوئی مریض داخل کرتے ہیں تو ایک دن کے ہزاروں ریال لیتے ہیں، صرف آکسیجن اس کو جاری کریے۔ اور ہمیں اللہ رب العزت نے یہ نعمت فری میں دے رکھی ہے، دن رات ہم سوئے ہوئے ہیں آکسیجن، جاگ رہے ہیں آکسیجن، کام کر رہے ہیں آکسیجن، آرام سے بیٹھے ہیں، ہر موقع پر اللہ رب العزت نے ہمیں آکسیجن فری میں مہیا کر رکھی ہے، یہی اس کی بہت بڑی نعمت۔ اور پھر اللہ رب العزت نے تمام ادیان میں سے سب سے اعلیٰ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے جو ہمیں عطا کرائی۔ دین اسلام تمام ادیان سے اعلیٰ دین۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ہی دیکھ لیں، تینوں ملکوں میں کتنی چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ کہیں سانپ کی پوجا ہو رہی ہے، پتہ نہیں ناگ راج یا ناگ راجا کیا کہتے ہیں، کچھ اس طرح، سانپ کی پوجا، ہاتھی کی پوجا، کہیں کسی چیز کی پوجا،
कुछ अर्सा पहले आपने भी शायद किसी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, हिंदुस्तान में हिंदुओं के यहाँ मिलियंस के हिसाब से माबूद हैं, मिलियंस, लाखों ऐसी चीजें हैं जिनकी वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर ये इनाम फरमाया, हमें इस नेमत से नवाजा कि हमें दीन इस्लाम दिया, और इस दीन में स्वाय अल्लाह की ज़ात के किसी की पूजा नहीं है। दुनिया भर में मशरक हो, मगरब हो, शमाल हो, जनूब हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, हर जगह पर अगर इबादत हो रही है तो सिर्फ अल्लाह ताला की, मुसलमानों के यहाँ। अल्लाह ने हमें इस तौहीद की नेमत से भी नवाजा, इस्लाम की नेमत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नवाजा। ये उसकी इतनी बड़ी नेमत है कि अगर हम सिर्फ इसी का शुक्र अदा करें तो हमसे पूरा नहीं हो पाता। और दूसरी बहुत बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये अता फरमाई कि हमें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहें, आपको सवाब मिलेगा, 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह खत्म होंगे, 10 दर्जे जन्नत में अल्लाह ताला बुलंद करेगा। इसमें आपका फायदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तमाम नबियों के सरदार, तमाम नबियों के इमाम, सबसे बड़े और सबसे अफजल नबी का उम्मती बनाया। हमारे नबी तमाम नबियों के सबसे बड़े हैं। नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल करें तो 1,24,000, मारूफ है ना, 1,24,000 अंबिया आए। उनमें से 313 और बाद रिवायत में 314 रसूल थे। 1,24,000, 1.25 लाख नबी टोटल, उनमें से 313 या 314 रसूल, जिसका दर्जा नबी से ज्यादा होता है। और उन रसूलों में से 5 रसूल वो हैं जिनको उलुल अज़्म मिनर रसूल कहा जाता है, यानी इंतहाई अजीमत वाले 5 रसूल। और वो 5 रसूल कौन कौन से हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अंदाजा करें कि अल्लाह ने हमें जिस नबी का उम्मती बनाया है वो 1,24,000 अंबिया से भी अफजल, 314 या 313 रसूलों में से भी अफजल, और जो 5 उलुल अज़्म मिनर रसूल हैं उनके भी सरदार हैं। इमामुल अंबिया व रसूल, अल्लाह ने हमें उनका उम्मती बनाया है। कितनी बड़ी नेमत है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, ला नुफ़र्रिक़ु बैना, कुरान करीम सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ के देखें, वहाँ कहा गया है कि हम अंबिया में तफरीक नहीं करते। सारे नबी हैं और हमारा ईमान है कि वो सारे नबी हैं, लेकिन हम पर इताअत किसकी है, बात किसकी माननी है? सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उनमें से बाज़ के दर्जे ज़्यादा हैं, बाज़ के दर्जात कम हैं। ये बात भी खुद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम का 3रा सिपारा जहाँ से शुरू होता है, सूरत बकरा ही है, क्योंकि आपको मालूम है ना सूरत बकरा 2 सिपारे और उसके बाद फिर 2.5 सिपारे हैं। 3रे सिपारे की पहली आयत है तिलकर रसूल, और इस सिपारे का नाम भी तिलकर रसूल ही है। तिलकर रसूल फद्दलना बाज़हुम अला बाज़, ये जो रसूल हैं इनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी। किसी रसूल को आला दर्जा दिया, किसी रसूल को कम दर्जा दिया। और इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शर्फ़ हम कलामी से नवाजना था। तो ये वाक़या तो आप सुनते रहते हैं ना कि मूसा अलैहिस्सलाम को कहाँ बुलाया था, किसी को मालूम है?
موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے گفتگو کرنے کے لیے انہیں کہاں بلایا تھا؟ طور پر، کوہ طور، پہاڑ جو ہے طور، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، والتین والزیتون وطور سینین، سورۃ التین میں اللہ رب العزت نے انہیں طور پر منگوایا، جو کہ زمین پر ہی ہے، ایک پہاڑ ہے۔ اور جب ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ہم کلامی سے نوازنا تھا تو انہیں کہاں منگوایا؟ 7 آسمانوں سے اوپر۔ اتنا مقام اللہ رب العزت نے دیا کہ ایک نبی کو ایک پہاڑ پر، اور وہ بھی مقدس پہاڑ ہے، لیکن ہمارے نبی کو 7 آسمانوں کے اوپر، اور وہاں اللہ رب العزت نے جنت کے نظارے کروائے، جہنم میں جلتے ہوئے لوگوں کو دکھایا۔ انبیاء میں یہ یقیناً فرق موجود ہے، اور یہ فرق اللہ رب العزت نے خود ہمیں بتایا ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اور ایک نعمت جس کا ذکر جو ہے وہ آج کی اس مجلس سے تعلق رکھتا ہے، وہ نعمت یہ ماہ رمضان ہے۔ ہمارا ماہ رمضان میں پہنچ جانا نعمت ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ پچھلے سال موجود تھے اور اس سال دنیا میں نہیں؟ کچھ یہاں ہمارے ساتھ تھے، یہاں نہیں بلکہ ملکوں میں چلے گئے، اور کچھ وہ ہیں جو دنیا چھوڑ کر فوت ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا کی کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت اس مہینے میں تندرست و توانا رکھے، صحت و عافیت سے رکھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسی اس عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ ہم اس موسم میں اپنے کچھ گناہ بخشوا لیں، کچھ نیکیاں زیادہ کر لیں۔ اللہ کی یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اس نے سال کے مختلف موقعوں پر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے اور نیکیاں جمع کرنے کے مختلف وقت رکھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اگر 12 مہینوں میں سے پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے محرم کا، تو اس کی 10 تاریخ یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کا ایک روزہ رکھیں تو کتنا ثواب ہے؟ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائے۔ یوم عاشورہ تو معلوم ہے نا، یہ کوئی شیعہ کا نہیں ہے، یہ ہمارا سب کا یوم عاشورہ ہے۔ شیعہ تو اس میں بدبختی دکھاتے ہیں نا، پیٹتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں۔ سنت رسول یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ یہ نہ روزہ رکھتے ہیں نہ رکھنے دیتے ہیں، لوگوں کو حلیم کھلا رہے ہیں، لوگوں کو بریانیاں کھلا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں 1 دن کا روزہ 1 سال کے گناہ معاف، بہترین سیزن۔ اور محرم سے پہلے ایک مہینہ آتا ہے، وہ کون سا ہوتا ہے؟ ذوالحج کا مہینہ، سال کا 12واں اور آگے پہلا، یہ دونوں مہینے آگے پیچھے ہیں۔ اگر ذوالحج کی 9 تاریخ کو ایک روزہ رکھ لیا جائے، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے والے کے 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ کتنے زبردست موسم اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہوئے، اور انہی موسموں میں سے 4 مہینے وہ ہیں جن کو اللہ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ویسے تو 12 مہینے ہیں، انگریزوں کے بھی 12 ہیں، مسلمانوں کے بھی 12 ہیں۔ ہمارے کون سے مہینے ہیں بھلا 12؟ جنوری فروری، ہمارے 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، 12 یاد ہیں سب کو یا نہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو ان کے نام تک یاد نہیں ہے 12 مہینوں کی۔ اور آج کیا تاریخ ہے؟ کسی سے پوچھو یہ نہیں کہے گا کہ آج پہلی تاریخ، حالانکہ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے نا، پہلا روزہ ہے۔ آپ کو تاریخ معلوم نہیں، کسی کو پوچھو فوراً دیکھے گا آج 18 فروری۔
अपना रमज़ान है, अपना कैलेंडर है, कुरान करीम में जिक्र मौजूद है, उसका तज़किरा नहीं करेंगे। शहर रमज़ान कुरान करीम में इस महीने का नाम है या नहीं? कुरान करीम में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में, और सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 महीनों का बाकायदा मजमूई तौर पर नाम लिया। सूरह तौबा में फरमाया इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स-समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। फरमाया कि साल के महीने 12 हैं, और ये 12 महीने कब से हैं? ये तक़वीम, ये कैलेंडर अल्लाह ने कब से तैयार किया, हमें दिया? यौमा खलक़स-समावाति वल अर्द, उस दिन से जिस दिन से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान बनाए हैं। यानी ये 12 महीने जो हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बनाए। जो ईसाइयों वाले हैं उनको छोड़ें, हमारे मुसलमानों वाले 12 महीने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले से मौजूद हैं। और कब से? यौमा खलक़स समावाति वल अर्द, जिस दिन से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान बनाए। मिनहा अर्बातुन हुरुम, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ये 4 महीने भी एक बेहतरीन मौसम होता है कि इनमें आदमी जितना गुनाहों से बच के रहेगा, जितनी नेकियां और सवाब कमाएगा, उतना ही ज़्यादा अफजल है दूसरे महीनों की निस्बत। और इन महीनों 4 महीनों की अजमत तो इतनी है कि अहद जाहिलियत में, जब अभी इस्लाम भी नहीं आया था, तब भी इस महीने में लोग लड़ाई नहीं करते थे, चोरी चकारी नहीं करते थे, डाके नहीं डालते थे, और कत्लो गारत नहीं किया करते थे। कहते थे कि ये हुर्मत वाले महीने हैं, इनमें ये काम नहीं होगा। और हम मुसलमान हैं, हमें भी इन महीनों का एहतराम करना चाहिए। और हमारा हाल ये है कि हमें मालूम ही नहीं कि 12 महीने कौन कौन से हैं। हमें ये मालूम नहीं कि उनमें से 4 ये हुर्मत वाले महीने कौन कौन से हैं। हुर्मत वाले महीने 4 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में सिर्फ 4 कहा, लेकिन नाम नहीं बताया। और वो 4 कौन कौन से हैं? सही बुखारी मुस्लिम वगैरह की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सलासुन मुतवालियात, 3 महीने मुसलसल हैं, यानी एक के बाद एक आने वाले। जुल्क़ादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम, 3 हो गए ना इकट्ठे, जुल्क़ादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम। व रजब मुज़र अल्लज़ी बैन जुमादा व शाबान, और चौथा हुर्मत वाला महीना है रजब, माह रजब। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रजब को बिल्कुल सही समझाने के लिए फरमाया कि जमादुल सानी और शाबान के दरमियान वाला महीना। आम अरबों की निस्बत जो मुज़र कबीला है वो इसकी ज़्यादा हुर्मत माना करता था, ज़्यादा एहतराम किया करता था। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारफ़ करवाया रजब मुज़र, मुज़र वाला रजब। इन 4 महीनों में भी अगर कोई नेक अमल करता है तो उसका सवाब भी आम महीनों की निस्बत ज़्यादा है। और एक अजीम महीना ये है जिसमें आज हम दाखिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान। इस रमज़ान के रोज़े रखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर फ़र्ज़ करार दिए हैं। जैसा कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 मैंने शुरू में पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। यानी ये रमज़ान के रोज़े सिर्फ हम पर नहीं हैं, पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। और इन रोज़ों को फ़र्ज़ करने का जो फ़लसफ़ा या हिकमत या फ़ायदा है वो क्या है? 2 लफ्ज़ों में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया और फरमाया लअल्लकुम तत्तकून। ये रमज़ान का महीना तुम पर इसके रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी बनाने के लिए ये रमज़ान का महीना और इसके रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। अब देखना यह है कि मुत्तकी क्या होता है। हमें तो मेरा ख्याल ये मालूम है ना कि नेक आदमी को कहते हैं मुत्तकी आदमी है। नेक है, परहेजगार है तो कहेंगे कि ये बड़ा मुत्तकी आदमी है, परहेजगार आदमी है। जबकि असल बात यह है कि जो शख्स भी
अल्लाह के अहकाम पर अमल करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करता है, अल्लाह के मना करदा जितने भी उमूर हैं उनसे रुक जाता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मना के उमूर आए हैं उनसे बाज रहता है, वो मुत्तकी है। मुत्तकी की तारीफ ये है कि जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल में उस पर अमल करे, और जिस चीज़ से मना किया गया है उससे बाज रहे, ये शख्स मुत्तकी है। एक तारीफ सहाबा किराम में से बाज़ सहाबा से मरवी है कि तकवा क्या है। फरमाया अत्तक़वा अल ईमानु बिल जलील, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ईमान रखना, अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना, वल अमल बित तंजील, और जो अल्लाह ने शरीयत नाज़िल की है उस पर अमल करना, वल इक्तिफा बिल कलील वल क़नाअतु बिल कलील, थोड़े पर किनात करना। बाद लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ से नवाजा हुआ है, लेकिन वो हर वक्त मर गया कुछ नहीं लाखों का मालिक है तब भी वो भागता फिर रहा है, उसको किनात नहीं है, किफ़ायत नहीं। किफ़ायत करे, थोड़ा है उस पर भी किनात करे, किफ़ायत करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे। वल इस्तेदादो लियौम रहील, और जो इस दुनिया से उसके जाने का दिन है उसकी तैयारी करे। चार चीजें मैंने जिक्र की हैं। अल्लाह की ज़ात पर ईमान हो, जो अल्लाह पर ईमान रखता है और शरीयत पर अमल करता है और थोड़े पर किनात करता है और अपनी मौत के लिए तैयारी करता है। मौत के लिए तैयारी क्या है? यानी अपने आप को किसी गाड़ी के आगे डाल दे, ये मौत के लिए तैयारी नहीं, ये सुइसाइड है, ये खुदकुशी है, ये हराम है। मौत के लिए तैयारी ये कि हमने इस दुनिया को छोड़ना है, इस दुनिया से जाना है, हमारे कब्र में हमारा हिसाब किताब होगा, फिर कब्र से माशर के दिन निकाला जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने फिर हिसाब किताब होगा, और उसके बाद अच्छे अमल किए तो जन्नत में और बुरे अमल किए तो जहन्नम में। इसकी तैयारी करना। वल इस्तेदाद लियौम रहील, अपनी मौत के दिन के लिए तैयारी करना, यानी नेक अमल जमा करना, बुरे अमाल से बचना। ये हैं चार चीज़ें जो तकवा का, समझ लें कि तकवा के चार पिलर हैं, तकवा के चार रुकन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ा फ़र्ज किया ताकि हम मुत्तकी बन जाएं। अगर पूरे महीने के 30 रोज़े, 30 आपके इल्म में है कि या 30 होते हैं या 29 होते हैं। अमूमन महीना कहा जाता है कि 30 का महीना है, लेकिन कभी कभी 29 का भी होता है। और ये मुसलमानों के महीने हैं हमेशा या 29 या 30, ना कभी 28 और ना कभी 31। जबकि आपको मालूम है कि जो अंग्रेजी कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर में ये महीना जो चल रहा है फरवरी, ये 28 का आता है या नहीं? 3 साल तक मुसलसल 28 का आता रहता है, और चौथा साल जिसको लीप ईयर कहते हैं उसमें 29 का हो जाता है। इस्लाम में ऐसा महीनों की कोई बात नहीं है, या 29 या 30। और कुछ महीने 30 के हैं, 28 29 के अलावा कुछ महीने 30 के और कुछ महीने 31 के। इस्लामी महीनों में ये भी नहीं। और आप में पता नहीं कोई पंजाबी लोग जानते हैं या नहीं, जो हमारे सावन भादों है उसमें एक महीना 32 दिनों का होता है। पंजाबी कैलेंडर में एक महीना फागन 32 दिनों का, और बाकी 30 का 30। हमारे महीने जो हैं वो सिर्फ 29 के या 30 के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हम कोई पढ़ी लिखी कौम नहीं है, हमारे महीने इस तरह हैं। देखें, आपने 3 मरतबा किया ये, तो कितने हो गए? 30 सीधे सीधे। फरमाया या इस तरह या फिर इस तरह।
اور تیسری مرتبہ یہ انگوٹھا جو ہے وہ دبا لی، 29 ہو گئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تاریخ۔ ہمیں یہ روزہ متقی کیسے بناتا ہے، ہفتے کے دن انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی، اس میں یہ بات ذکر کریں گے کہ روزہ ہمیں متقی کیسے بناتا ہے۔ ابھی چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں، روزہ کھلنے والا ہے، روزہ کھلنے سے پہلے اللہ رب العزت جو دعائیں ہم کرتے ہیں ان کو قبول کرتا ہے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو رمضان کا پورا مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔